workshop related to classroom management. And I heartily welcome you, sir, Mr. Rakesh, Mr. Lokesh. and Kavita, and another few persons. And first of all, I would like to call Ghazal ma'am and Shweta ma'am to present the bouquets. If I talk about Mr. Lokesh and Nadira, he has over 25 years of experience in sales and marketing, FMCG, insurance, finance, education and training verticals. Before joining UPS Learning, he has worked with different organizations like Blue Star, Voltas, SDFC, Standard Life Insurance, Promise, and Encyclopedia Britannica. Apart of it, he also has worked with more than 30 students, and he attended he conducted different workshops for transforming the life of different students. And apart of it, he also has conducted more than 1,000 teachers and parents interaction across India and UAE. And he is a very spiritual person and supported in this endeavor by his wife and two wonderful children. So now I would like to call our vice principal sir to say the introduction. सबसे पहले अध्यापकों को मेरा सादर प्रणाम, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। शिक्षक अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, क्योंकि शिक्षा जो प्रदान करेगा वो शिक्षक है। हम किसी स्टूडेंट को हथियार भी बना सकते हैं और किसी स्टूडेंट को अवतार भी बना सकते हैं। हथियार बनाना इन द सेंस, अगर हम उसमें नेगेटिव फीडबैक डालते जाए तो वो एक हथियार का काम है। वो अपने परिवार को ही नहीं, अपनी कंट्री को भी खत्म कर सकते। अगर स्टूडेंट के माइंड में अच्छी बातें डाली जाए, अच्छी इमेज डाली जाए, अच्छे विचार डाले जाए, वो स्कूल लेवल से ज्यादा स्टार्ट होंगे तो उसे एक अवतार का रूप भी मिल सकता है। अवतार इन द सेंस, वो एक ब्लेसिंग का काम करेगा अपने परिवार के लिए, अपने स्कूल के लिए और अपनी कंट्री के लिए। सेम वही काम करते हैं हमारे आज के गेस्ट लोकेश जी, जिन्होंने लगभग 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपनी ट्रेनिंग के द्वारा, अपनी बातों से एक पॉजिटिव माइंड में कन्वर्ट किया। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके पेरेंट्स को, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी अलग अलग देशों में अपनी सेवाएं उन्होंने दी। तो एक बार जोरदार तालियों से हम दोबारा just put my phone for charging over here and then I'll be able to just give me a second. So Hare Krishna to everyone. I'm Abhay Dubey from UPS Learning. So since you are using some of the books of UPS from long actually, before that we were with Encyclopedia Britannica. So let me tell you something about UPS Learning, how we started this. UPS basically is a green. That means active seeking of knowledge and willingness to learn. And under the umbrella of UPS, we have developed different verticals to cater different needs of schools. Like we have reading program from Spain. We have tennis cutting learning program from Alexandria Institute, Denmark. Same as we have lot many programs worldwide under the umbrella of UPS. And we basically work to strengthen the teachers so that, because you are the prima phase who are going to deliver and deal with the students or parents. So in this, basically Mr. Lokesh, our senior or mentor, is also with us. And when we started after Encyclopedia Britannica, we were 43 people who started this organization UPS. And Lokesh and I basically both are the part of these 43 members. Fine. So over to Mr. Lokesh to carry on.
Sir, presentations. I think, am I audible? Yes. Yes. सुनाई दे रहा है आपको? बस तो ठीक है। Okay, First for Anji, so very good morning to you all. दो बारी प्रोफाइल एक बारी आपने पढ़ के बता दिया, सर ने वैसे बता दिया. So my great honor to be over here today. And like what Abhay said, yes, it takes a lot of guts to start your own business. And we started a company with a hope to do something extraordinary. Because all of us sitting over here, rather many of us sitting over here are parents too. So we understand that what a child learns at school and how does a parent teach at home is a larger difference. Because teacher understands the pedagogy, teachers are trained to make their students understand a concept in a particular manner. So when we started this beautiful, I would say, company, UPS Learning, we knew one thing for sure, that we want to be different. And that's the story that started in 2017. Today, we are present in 10,000 plus schools, 4.2 million students, 42 लाख बच्चे हमारे उसको डिजिटल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं. तो ये सफर बहुत ही बढ़िया रहा, बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. आप जैसे स्कूलों ने हमें मौका दिया कि हम आए आपके सामने अपने सॉल्यूशंस को रखें और उसके बाद उसको सर्विस इस हिसाब से करें कि बच्चों को भी मजा आए, टीचर्स को भी मजा आए. So having said so, today's interaction is more about understanding who we are. पहले हम खुद को तो समझ लें कि हम कौन हैं. I'm sure everybody has a name, just like me. But do we really know ourselves? So I'm going to make it as interactive as possible. So the first question is, it says incredible in me. It says incredible in me. If you would read, you will also read it like the way I am reading. So it's saying incredible in me. Good. So that means each and everyone sitting over here is an incredible person. ठीक है? अब incredible का मतलब क्या है? कौन बताएगा? और जल्दी जल्दी करेंगे. Incredible का मतलब क्या होता है? अच्छा, by the way, there are no wrong answers. Most of the questions will be open-ended. ठीक है? बताइए, incredible का क्या मतलब है? Very good. It was so simple, extraordinary. A round of applause for you. और आप देखते रहना किसने आपके लिए क्लैप नहीं किया. इनकी बारी आएगी तो आप भी मत करना. So understood, extraordinary person, a person who cannot be compared with, right? All right. तो मेरा ये मानना है कि इस कमरे में जो जो बैठा हुआ है आज वो एक incredible person है. Can you tell me why? Why each one of you is an incredible person and me and Abhay are not an incredible person? We may be very good, but we cannot be compared with you. Why?
One person can be different qualities. दोबारा बोलिए. One person can be different qualities. Each person has different qualities. नहीं एब्सोल्युटली वो तो मान ही रहे हैं, मगर मेरा मानना ये है कि इस कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं खाली वो ही इनक्रेडिबल है भाई, मैं नहीं हूँ. वंडरफुल, बिकॉज यू आर एजुकेटर्स. मेरे जैसा पेरेंट अपने बच्चों को कहाँ भेजेगा भाई? स्कूल में ना. आपको आपके पेरेंट्स ने भेजा स्कूलों में. But today you have taken on yourself something very big. Not that big, cannot be compared with anything else, because only the educator has the power to change the destiny and the future of hundreds and thousands of students who come and learn under you. तो सबसे पहली बात तो ये, इतने सारे incredible लोग आज इस कमरे में बैठे हैं, तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज आप सबके. So please understand कि आज जो भी हम बात करेंगे वो एक पॉजिटिव बात करेंगे. मेरी इंटरेक्शन में आज तक कभी कोई नेगेटिव बात ही नहीं हुई. Because it takes a lot to wire yourself in a positive manner. Negativity multiplies like this and positivity will tell you, अरे भैया ऐसा कभी होता ही नहीं है. आप न्यूज़ देख लीजिए, न्यूज़ विल बी ऑल नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ही बिकती है भाई, क्या करोगे. चलिए ये हमने कर लिया. ओके, डू यू कंसिडर योरसेल्फ इनक्रेडिबल? ये तो मेरा मानना है कि आप इनक्रेडिबल हैं, मगर आप अपने आप को इनक्रेडिबल मानते नहीं मानते? गेम वो है, गेम एक्चुअली वो है. The person from the outside will say आप सब incredible हैं, मगर क्या आप अपने आप को incredible मानते हो या नहीं मानते हो? कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया होगा, 1 साल 2 साल. मैम से मेरी बात हुई, मैम हैज बीन हियर फॉर 17 years. ये मैम एक 10 साल करके फिर दोबारा आई है. So I'm sure there will be some new ones also. But let me tell you, the moment you chose to come into this profession, and it's a profession today, you are a professional. अगर आज की डेट में मैं देखूं तो अगर कोई बाहर काम करने जाता है प्राइवेट कंपनी में, उनकी एक काम करने के घंटे होते हैं, इतने बजे से इतने बजे. And same today, school is also going through the same process. बल्कि मेरे ख्याल में तो आपको कई बार रोक भी देते हैं, कल ये है, कल वो है, आज इसकी तैयारी करनी है, कल उसकी तैयारी करनी है. So you will have extended hours also. So please understand, that's the reason I say you must understand that what you do creates lot of value. आप जो भी काम करते हैं वो वैल्यू का करते हैं. अब यहाँ पे कितने सारे हमारे दोस्त हैं जो पेरेंट्स हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स. आप तीनों भी नहीं है, आपकी शादी हुई है, शादी हुई है, पेरेंट ही बने ना, वेरी गुड. इस कैटेगरी में मत आना. और जिसकी अभी शादी नहीं हुई वो एंजॉय कर लो लाइफ में. See, I have 2 kids also. Both of them are lawyers. But if you ask me, anybody who said parenting is easy was a big lawyer. झूठ बोल रहा था वो. तो थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहा हूं मैं टॉपिक से. अगर कोई आपको बोलता है कि बेटा बहुत टाइम हो गया, मुझे दादा बनना है, मुझे दादी बनना है, किसी को चाचा बनना है, किसी को मामा बनना है, भाई वो आपका बच्चा बड़ा नहीं करेगा. मैम, देख लो, your responsibility. No one can take the responsibility. You are the parents. You have the responsibility. You will complete the responsibility. Correct. अच्छा एक चीज बताओ, Yes. when you were single, Yes. how much? नहीं matter. No details. Listen, we all friends over here. While you were single, how much time did you have for yourself? Spend
24 hours for me. Oh my goodness. चलो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं. So when you got married, I have no time for me. नहीं अब तो I have zero time. wonderful. चलो स्माइल तो आई. ये बहुत मुश्किल काम है. So please understand, it's a full time because the moment you become a parent, और जब आपके जहन में भी आया ना कि मुझे पेरेंट बनने का शौक हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि यू आर गिविंग अ अनकंडीशनल गारंटी टू whom? To the Almighty. ये बहुत बड़े काम पे मैं निकल रहा हूं, मेरी मदद करना कि मैं जो आए मेरी जिंदगी में उसको अच्छा इंसान बना सकूं. मगर इसके बाद भी मैं कह रहा हूं आप इनक्रेडिबल, आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है. अब मुझे आपके लिए टाइम निकालना पड़ेगा. बिकॉज क्यों टाइम निकालना पड़ेगा? क्योंकि जब आप कमरे में एंटर करते हो उस टाइम पे ही बच्चे को, स्टूडेंट्स को समझ आ जाता है कि आज क्या सीन होने वाला है. स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड मोर सो जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है. हमें पता लग जाता था कि आज टीचर का प्रेशर कुकर फट के रहेगा. आज होगा मतलब वहां पीछे बैठ के कैसे टिफिन पहले ब्रेक से पहले खत्म हो जाता. सो टुडे इफ यू आस्क मी द चैलेंजेस आर umpteen. खाली यही नहीं है कि मुझे ब्रेक का इंतजार करना है या मुझे गेम्स पीरियड का इंतजार करना है इसलिए मैं बाहर देख रहा हूँ. आज शायद व्हाट्सएप पे क्या चल रहा होगा, मेरे फेसबुक पे क्या चल रहा होगा, इंस्टा पे क्या नया आया होगा, ओहो यू नेम इट. सो फॉर अ टीचर लाइक यू द चैलेंजेस तो पूछिए मत. बहुत सारे चैलेंजेस हैं. किस किस को पकड़ोगे, कैसे कैसे करोगे. But for that, we need to be in the right frame of mind when we enter the classroom, when we enter the school, when we wake up in the morning. Everything is connected. चलिए, तो ये तो मान के चलते हैं कि everybody sitting over here would want to see their children successful in life and happy too. इस पर लिखा हो what quality should our children be empowered with. अगर सक्सेसफुल होना है तो कुछ क्वालिटीज भी तो होनी चाहिए. हाँ मैम बताइए. वैल्यूज. वेरी गुड. हम एक काम करेंगे, सब एक एक क्वालिटी बताएंगे. ठीक है मैम. यू विल बी द लास्ट. ओके. मैम ने वैल्यूज बताई. नेक्स्ट ऑनेस्टी. वेरी गुड. लॉयल्टी. डिसिप्लिन. आपका बहुत है. कितना बढ़िया बोला आपने. रिस्पेक्ट. हाँ जी. पंक्चुअलिटी. हाँ स्कूल है तो पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन तो होनी चाहिए. हार्ड वर्क. कितना काम. केयरिंग फॉर अदर्स. बहुत बढ़िया. रिस्पेक्ट. वेरी गुड. रिस्पेक्ट टुवर्ड्स पेरेंट्स. एक अच्छा इंसान बने, अपने आसपास के हर प्राणी, केवल मनुष्य नहीं, सभी प्राणियों के बारे में सोचें. सभी प्राणियों के बारे में सोचें. आजकल तो इट्स मी. दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. मैं तो पहले आगे बढ़ूं फिर आगे देखेंगे. हाँ जी. उत्सुकता. So should know that where to say and what to say, and to know the correct person who is good for him and. मैम ने बहुत बढ़िया बात कही है. इट्स नॉट व्हाट यू से, हाउ यू से वुड मेक अ डिफरेंस. है ना. वो इस लाइफ है. राइट. बहुत बढ़िया. ऑनेस्ट पर्सन. हाँ जी. मेरा मानना तो ये सर जो समय की कदर कर लेते हैं ना, समय की The one who respects time, good time manager. Very good. वो सक्सेसफुल है. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. Be happy and positive in life. Oh, And be happy and positive. Very good. Smile तो आपकी भी कमाल है. The child should be emotionally intelligent and he or she should have like problem solving qualities. Problem solving है यहाँ पे. Okay. हाँ. Don't be student. Want attachment with student. Okay. Attachment. Good. Kindness.
की बातें करते हो ना, इसके पास पेशेंस है। अभी रेड लाइट ग्रीन हुई नहीं है, मैंने पीछे से हॉर्न सुना। अब आप बताइए, मैं वहां पिकनिक मनाने तो गया नहीं। बट यस, पेशेंस, वेरी बिग क्वालिटी इन दिस लाइफ। वेरी गुड, हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव। नेवर गिव अप अप्रोच, वेरी गुड। परसेवरेंस जिसको हम बोलते हैं, बहुत बढ़िया। रिस्पेक्टफुल, हाँ सर, वेरी गुड। Firstly, good listener and attached with parents. ओके, गुड लिसनर, ये फिर से एक बहुत बड़ी बात कहती है इन्होंने। आज की डेट में, इफ यू आस्क मी, एवरीबडी वांट्स टू स्पीक। एवरीबडी वांट्स टू स्पीक। अच्छा, बाय द वे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। कौन बताएगा डिफरेंस? बताइए ना। बैठ जाओ। सुनना तो हम सिर्फ कान से सुनते हैं, और लिसनिंग मतलब हम ध्यान से लगाते हैं कि वो क्या बोल रहा, का अर्थ समझना, अर्थ ग्रहण करना। बहुत बढ़िया, राउंड ऑफ अप्लॉज। धीरे धीरे पुत्र, वेरी गुड, वेरी गुड। So one needs to understand that this difference is very critical. आप सुन तो बहुत सारी चीजें रहे हो, मगर आपने कौन सी चीज उस तरीके से सुनी that you are able to make sense and you are able to contribute. इसीलिए हर पेरेंट के लिए जरूरी है कि he or she should become a good listener. क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस से समझ लिया कि अगर ये चीज है तो ऐसा ही हुआ होगा, मगर उस बच्चे ने तो पहली बार ही किया है, वो एक्सपीरियंस किया है। उसको कैसे पता लगेगा कि आप ही हैं उसके पेरेंट? वो तब पता लगेगा जब आप उसकी बात अच्छे से सुनेंगे, और सुनने के बाद जब जब आप अपने बच्चों को कुछ भी बोलेंगे, he or she will listen to you, not hear but listen to you. चलिए, अब क्वालिटीज तो आपने चौड़ पे मुझे बता दी। ये भी होना चाहिए उसके अंदर, लीडरशिप भी होनी चाहिए, गुड लिस्टर होना चाहिए, ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए, ठीक है, वक्त के साथ चलने वाला होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। वही करेगा कौन? कौन करेगा? कौन सी इन्वायरमेंट? सर, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जैसे कि हम एज एजुकेटर, हम लोग क्या कर रहे हैं वो बच्चे वही देखेंगे। What else? पेरेंट तो बोलता है कि हेलो। अच्छा, ये जैसे आपने एजुकेटर बोला था, मेरे अंदर का पेरेंट तो इतना खुश हुआ, इसका कुछ पैसा तो वसूल हो गया। हम सबको करना चाहिए। लाइक ये नहीं है कि ये मेरा बच्चा है तो एज अ पेरेंट एजुकेटर वो करना चाहिए, लेकिन जो आसपास पड़ोसी जितने भी हैं, अगर सब वैल्यूज सबको सिखाएंगे ना, तो इनडायरेक्टली हम सबसे कनेक्ट हो गए। अब बच्चा बाहर जाएगा, इन्वायरमेंट क्या है, जो कैसे बच्चे और भी बच्चे उसके आसपास आएंगे, वो भी किसी के पेरेंट होंगे, कोई और टीचर हमें पढ़ा रहा होगा। अगर सब हम एक ही वैल्यूज पे चले और सब बच्चे को अच्छी बातें और अच्छी वैल्यूज दे, तो देखा जाए तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच एंड एवरी पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इम्पैक्ट करें। Absolutely, I'm with you on this one. Absolutely. But if you ask me, prima facie, because I send my child to the best school, एक पेरेंट के लिए जहां वो अपने बच्चे को भेजता, बाय द वे वही बेस्ट स्कूल, उसके ऊपर नहीं है। उसकी एक एक्सपेक्टेशन है कि ये जो बेस्ट स्कूल है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। That's the expectation. जहां डिलीवरेबल्स की बात आती है, तो वहां पे डिलीवरेबल्स कौन कर रहा है? इनक्रेडिबल पर्सन इन ईच वन ऑफ यू। मैंने पहले बता दिया था आपको। अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं आप कर सकते। So the person in you will play a dual responsibility of what the values, the
the skill sets of 21st century that you will inculcate in your students over here, so that this child, when they go out from here to the college, from college to possibly working somewhere or starting their own business, they have those skills to take the next leap of faith step. Okay? तो इसीलिए यहाँ पे तो responsibility है parents, society and of course the school. All three of you, as you rightly said. इस पे लिखा हुआ 75%. Again, it's an open-ended question. 75% से आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं? ये 75% लिखा हुआ मैंने आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं? When you see this figure 75%. And by the way, all answers are correct क्योंकि मैंने ये open-ended question है. आप इसको किसी भी तरीके से लेके जा सकते हैं. बताइए. Let me see what all can you think of. Your side for us. Okay, 75% possibly is what I expect from you. Is this what you're saying? As a teacher, okay. What else? So all answers are correct. बच्चा अगर 75% तक हम काउंट नहीं कर सकते वैसे बट मोस्टली वो सीखता है अपने इन्वायरमेंट से, अपनी सोसाइटी से. ठीक है. जैसे ऑब्जर्व करेगा बच्चा, बताने से नहीं सीखेगा वो खुद जब उसको ऑब्जर्व करेगा ना उसको रियलाइज होगा कि क्या एक्चुअली क्या है. Okay. Okay. What else? 75%. 75% development of children, like will be in school, I guess. Good. Very good answer. Like mental abilities and the things we teach them, they learn skills, everything comes in. Very good answer. Very good answer. I'll come back to you. But sir, according to me, 75% depends on the parents. Very good answer again. Because if we, from the home, we inculcate in the mind of our child that to be the honest person, patience, and either the good qualities, then 25% is when the teacher, when the educator, when we, the teacher, which we wants to feed, the same the students repeats in the school, then it will, you can say combinedly, it will work as a 100%. ठीक है, बहुत बढ़िया. So let me just sum it up. आप दोनों ने दो बातें करी हैं. You are of the view that 75% of a child's development takes place in school. You are saying that 25% of the support is what is extended by the school, whereas 75% of the development of the child is done by the parent, because now the parent becomes a role model, and if I want to see my child to be honest, then I better be honest. If I want my child to possibly wake up at 6, then I better wake up at 5:45. इसीलिए बोलते हैं parenting बहुत मुश्किल है यार. Sir, obviously, because if we want the, although we are not perfect, not a single person is perfect in the world, but when we are doing the parenting, that time we 150% wants to be the better person, so that our child be the most misappropriate person, so that the everyone will be see and be the, you can say, the role model like him or her. So if we firstly we have to give our best, then by the support of our educators and teachers, it will give the good parenting to a child. मुझे ये बात कितनी अच्छी लगी मैम की ना. पेरेंट को समझा के देखा कभी? Yes, sir. Because firstly, whatever I have here, it each and everything, each and single percentage, I am giving to the credit to my father as well as my mother. And whatever my father and mother fed up in my mind, and it extended in the school also. And when the same thing is when I added the both the things, that what my father is saying and what my teacher is saying.
that I said that yes, my father is right because my teacher is saying the same thing. And that time I you can say memorize the things, and that time I thought that yes, I should do this because both the things are joined to each and everything. बहुत बढ़िया. So I'll come to you. Anybody else? 75% लेके कुछ याद आया? सर 75% जो है बच्चा अपने जो है सराउंडिंग से सीख लेता है, उसको सिखाने के लिए भी नहीं होता है. 25% वो होता है जो पेरेंट्स का यानी एज एजुकेटर जो है हम बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ सही है, जो ऑलरेडी सीख चुका है उसको करेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आप यहाँ पे सही है या यहाँ पे गलत है, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए. मुझे लगता है कि बच्चा जो सीखता है ना सर, वो उसको बताने से ज़्यादा वो देखकर जो है ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा सीखता है. Very, very, very intelligent answer, because a child in the initial years is unable to speak but is understanding everything by observing. उसको पता लग जाता है कि आपके चेहरे का जो रंग है, अगर वो लाल हुआ तो शायद आप गुस्से में हैं, अगर आपकी स्माइल है तो शायद आप अच्छे मूड में हैं. So the child is very smart. Child may not be able to speak, but at the same point of time, child is learning from observations. So you see, homes where there is lot of love, harmony, there you will see that child will understand what peace is all about. The child will always be relaxed. हाँ, और 75% से क्या समझ में आता है? Like being a mother and also a mother of two kids, I have observed that children learn less at home and more at school. Because when the child enters the nursery class, he's a blank, like he's like clay. He's clean slate and he's like a clay. And the teacher molds him. वो बनाते हैं उनको कि उनको कैसा शेयर देना है, क्या सिखाना है. And he observed everything in the school. At home the same things are same, but in school everything is different. He learns new things in school, and he learns speaking skills, like motor skills, gross motor skills. Everything is improved in school. That's why I say like 75% we give in school. किसी को नंबर्स नहीं याद आया अभी तक? और यहाँ से तो रोक के रखा होगा लोगों ने. हाँ, बताइए. मुझे लगता था कि 75% मार्क्स है, मतलब कि हम होड़ में लगाए हुए 90% ले गया, 99 ले गया, और मुझे लगता है 75% भी काफी अच्छे हैं. वो एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर हम उस पे एफर्ट्स डालें. मुझे तो सुनाई नहीं दे रही है बात. मैम आपने कितने बच्चे हैं? 2 सर. 2. 2 times lucky like me. Very good. और कितने बड़े हैं? सर छोटे-छोटे, एक नर्सरी में, एक अभी. Very good. God bless you. Please sit down. बट सर आज के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मैं समझती हूँ कि जो बच्चा है उसकी थिंकिंग ना तो पेरेंट पे डिपेंड है ना वो टीचर पे डिपेंड है. तो अपना एक वे अलग ढूंढता है. हमारे पास सोसाइटी का रोल बहुत ज्यादा है. इसलिए अगर वो बच्चा 75% भी गेन कर लेता है, उसको 100% गेन करें, क्योंकि वो ऑलराउंडर होता है. उसको वो 75% ले रहा है, वो हर चीज में इन्वॉल्व है. अगर उसको कहीं जाना है वो वहाँ भी जाता है, स्टडी भी कर रहा है और ऑब्जर्विंग भी कर रहा है कि क्या मेरे एनवायरनमेंट है. बट वो खुद जज करते हैं आजकल की जो जनरेशन है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग. वेरी गुड. हाँ जी. सो यस. 75% से मुझे एक स्टोरी याद है, जो लाइक स्टोरी इज नॉट स्टोरी, इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी. कि एक लड़की थी, मतलब शी इज आई थिंक सो 1 year सीनियर टू मी, एंड उसके 75% आए थे 12th में. एंड वो मतलब पहले डिप्रेस हो गई. एज अ पेरेंट्स ने भी बोला कि बेटा तेरे तो 75% है, तो फ्यूचर में क्या करेंगी. ठीक है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मतलब कैसे डाल दिया. बट आज वो लड़की एक सक्सेसफुल MBBS डॉक्टर है. तो वो है कि हम बच्चे को हमें 75% से डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए. और ये क्यों हुआ, ये सिर्फ एक एजुकेटर के कारण हुआ, क्योंकि उस एजुकेटर ने उसे वो चीज़ सिखाई. वो क्लोज थी काफ़ी एजुकेटर से, तो उससे उसने
बात की उस लड़की ने, तो उसने समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, आपको वो हमें बच्चों के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट को ग्रो करना चाहिए rather than हमें कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, उतने मार्क्स आए हैं। आपको मोटिवेट करना चाहिए, आगे चल के आप और अच्छा कर सकते हो। उनके अंदर एक हार्ड वर्किंग नेचर हमें डेवलप करना चाहिए। So, before I tell you what is this 75%, I'll also share a small two-liner thing with you, because most of you sitting over here are parents. So please understand, we did not bring these wonderful children in our lives for them to get 100%. किस के यहाँ पे बैठे हुए सब सब्जेक्ट में 100% आए, हाथ खड़ा करो, मैं तो कभी कर ही नहीं सकता। 56%, अब तक 56%, ठीक है? You see, there are multiple issues with the parents. वो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, मगर अब सारी एक्सपेक्टेशन ये है कि यही बच्चा करके देगा। भाई एक बात समझो, एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। मतलब जो जेनेटिक्स है वो तो गेम खेलेगा ही खेलेगा, एनवायरनमेंट जरूर आपकी मदद करेगा, बट जेनेटिक्स का रोल बहुत होता है, ठीक है? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, 75%. So while my daughter was growing up, and my wife is also into education, she is a Montessorian, very senior Montessorian. She sets up schools now of Montessori. So, if you ask me today what I am, possibly 90% has to do with my wife, because she told me what does it take to become a parent. How you and me, we are going to talk before our children. What are the things that should be common so that the children don't take advantage? And one thing was clear, that we were very sad to see students committing suicide after 12 because they did not get that right percentage. It's a shame. It's a shame. So before my daughter sat for grade 12 examination, she was a Kathak graduate. She was a French graduate in French English, she could start teaching immediately. And she came up to me and said, Dad, what percentage should I get that will make you happy? So I told her, beta, in today's competitive time, everybody sits for a competitive exam. Depending upon what your interest is in, please understand that getting 50% is the bare minimum. Please do not disappoint yourself. Take this seriously. And she was a brilliant student, and she is still having a photo memory. आप उसको document दे दो, she will tell you which are the pointers. Some kids are extraordinary. That's what she is one of them. She went on to get 89%. She said, are you happy? I said, I was happy at 50 also. But what you want to do with 89 depends upon you now. क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 95 वाले को 97 वाले को भी सीट नहीं मिलती, फायदा क्या है? आप अपनी जिंदगी को जियो, कितना पढ़ाई करोगे, कितना हार्ड वर्क कराओगे, स्मार्ट वर्क कराओ. Your concept should be clear. That's it. She sat, she cleared law. She went to MIT Law School. She is doing reasonably very well. She is a principal associate now, a high position in a law firm, very successful law firm. She is doing good for herself. मेरे लिए मेरी वो चीज है. Because as a parent, I brought her to this level. Next came my son. वो बोलते ना भगवान सारी खुशियां आपको नहीं देता, बैलेंस करके चलता है. ज्यादा खुशी से पागल हो गया तो, या ज्यादा गम में आत्महत्या कर ली तो, वो बराबर करके करता है. जहां वो ब्रिलियंट स्टूडेंट, यहाँ ये सारा दिन इसका ध्यान गेम्स में जाता. He was like on me, absolutely on me.
खूब खेला। इंटर स्कूल कंपटीशन में क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं फुटबॉल भी खेल रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ। मेरे सबसे ज्यादा दोस्त हैं, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब आ रही थी 12वीं की। मैं टीचर से मिलने जा रहा हूँ, टीचर मुझे बोलती है मिस्टर दरेरा सीरियसली? मैंने कहा सीरियसली की क्या बात है, आपको क्या? और मेरी वाइफ ने पहले दिन ही क्लियर कर दिया था कि लड़की का मैं करूंगी, लड़के की सारी मीटिंग तुम जाओगे, क्योंकि उसको पहले से ही पता था। अब मैं हर बार जाता, मैं टीचर को काउंसिल करके आया। तो इस बार वो टीचर बोलती है मिस्टर दरेरा, डू यू नो ही गॉट ओनली 42%? What, madam? That is sir 42. लगता है 1 साल और। मुझे कोई जल्दी नहीं है। भाई आपको जल्दी क्यों होनी चाहिए? किस चीज की जल्दी है? 1 साल बाद कॉलेज में चला जाएगा, कौन सी आफत आ रही है? कोई नहीं आ रही। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द माइंडसेट ऑफ अ पेरेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं और कुछ नहीं बता रहा आपको, मैं अपने आप को महान नहीं कर रहा, मगर मुझे अपना बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा है। कहती है सर अगर इसके 33 से नीचे परसेंट आया होते ना तो मैं आपको बुलाती नहीं, सीधा घर पे लेटर भेज देती, थैंक यू सो वेरी मच, अगले साल की फीस जमा कराता हूँ, 1 साल और रहेगा। मैंने कहा ठीक है मैडम, आपको अपना स्कूल का रिजल्ट खराब करना तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब हम दोनों बाहर जाते हैं, तो माय सन इज टेलिंग मी ऋषभ डैड सीरियसली कौन करते रहते आप? मैंने तो अभी पढ़ाई नहीं करी। मैंने कहा बेटा तो पढ़ेगा तब, ये प्री बोर्ड था, ये आईना है, इसके ऊपर कितने 5, 6, 7, 10% लेके आए तो कोई जल्दी नहीं, तो 1 साल और कर ले। कह रहा प्लीज वेट, इट्स अप टू मी ना, आपको क्या चाहिए? सेम डायलॉग 50% ले, ये तो किसी एंट्रेंस में तो बैठ सके, क्योंकि बाप कोई फैंसी कॉलेज में तुझे भेजेगा नहीं, कैपिटेशन फी देगा नहीं, तो जो करना है अपने बलबूते पर। I was in Manali doing a teacher interaction like this, and I got the news. मैंने मोबाइल पे देखा, उसने लिखा हुआ डैड आई गॉट 78%, 94% इन इंग्लिश, और मैंने यूं करा। तो टीचर मुझे बोल रही सर व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ये कौन सी एक्सरसाइज है? मैंने कहा आई एम सो सॉरी, but reading the news that my son got 78% and 94% in English, I cannot believe. He's done brilliantly. Can you sir seriously? मैंने कहा हाँ मैम seriously, मुझे नहीं चाहिए था 100, ये तो बहुत सारे आ गए। And you see, there comes a time in your life when you understand the significance and you do things on your own, correct? उस लड़के ने मुझे स्कूल में ले जाके पहले कॉमर्स ली थी, फिर कहता कॉमर्स नहीं करूंगा, आर्ट्स करूंगा। हम सब्जेक्ट्स चेंज कर रहे हैं, स्ट्रीम्स चेंज कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं साइकोलॉजी की किताब तो बहुत मोटी है, मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी। बट द सेम गाय नाउ टुडे इज आल्सो लॉयर, और इतनी मोटी मोटी किताबें उसने पढ़ के पास करी ना। So have faith in your children, just don't give it up on them. हर बच्चे का अपना टाइम होता है to blossom, to become a beautiful person. मगर अगर उससे पहले वो उसको ये नहीं आता, तुझे ये नहीं आता, तू कहाँ नालायक है, उसको दे, कंपैरिजन कभी नहीं करते। Your child love, तो ये 75% क्या है जो मैम ने बोला था, that 75% of a child's personality gets developed by the age of 10 or 12 years, and after that the remaining part is what we all today are sitting over here. हम खाली 25% अपनी personality को improve कर सकते हैं। That means the major development of the brain has actually happened. It's done with. तो जितने mother teachers मैम की तरह यहाँ पे हैं, oh huge responsibility है भाई, huge responsibility है। अगर मैं किसी स्कूल में जाऊं तो मैं खाली सबसे पहले ये बोलूं, I want to meet your teacher.
टीचर्स, फीस गई तो जो तो मुझे कहीं पे भी देनी है। So that is the role that a teacher plays. My goodness, सोचो 75% एक बच्चे की पर्सनैलिटी हमने कब तक बना दी? 10 से 12 साल के अंदर ही बना दी। और ये वाला बच्चा कौन सी क्लास में होगा? शायद 5th में होगा, 6th में होगा। और हम कहते हैं ये बच्चा तो अभी छोटा है। The child is actually observing. आप जो चीज कर रहे हो, घर पे जो चीज हो रही है, एवरीथिंग जो चल रहा है, वो सारी चीजें उसको समझ में आ रही है। मेरी रिप्लाई नहीं कर पा रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, बट अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट। सो प्लीज अंडरस्टैंड। और इसमें किस किस की क्लास में आपको लगता है कि शाय बच्चे भी हैं? हाथ खड़ा करने का। ओके, वेरी गुड। तो इस शायनेस पे भी रहेंगे। Please understand, even if the shy child gets 100%, there is still no guarantee that this child will become a successful and a happy adult. आज की डेट में आपको सारी चीजें आगे बढ़ के you have to sell yourself. You have to tell why you should be looking at me, not anybody else. अगर कोई यहाँ पे मैथ्स का टीचर कौन है? ओ यार, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट। बट इफ यू आस्क मी, मैथ्स से बच्चे बहुत घबराते हैं। और अगर आप मैथ्स देखो, नंबर्स नंबर्स नंबर्स, देयर इज नॉट अ सेकंड व्हेन वी डू नॉट थिंक अबाउट नंबर्स। अभी टाइम क्या है, मेरे पॉकेट में पैसे कितने हैं, उसका प्राइस क्या है, यू जस्ट नेम इट। नंबर्स विल नॉट बी इशू, बट स्टिल सम स्टूडेंट्स हैव द फोबिया, करेक्ट? So please understand, it's simply not you coming to the class and saying, मैंने आज ये पढ़ा दिया, सबको समझ में आ गया। 2-3 नमाजें हर क्लास में आती हैं, yes sir, yes ma'am, but what about the remaining 27 students of your class? That is the question. और आप भी ये सोचते होंगे, जब क्लास में सारी चीजें कर दी तो होमवर्क में बेड़ा कर क्यों? और चलो होमवर्क भी ठीक है कि बच्चे ने कहीं जाके हेल्प ले ली, जब क्वेश्चन पेपर आया तो उसमें बेड़ा कर क्यों? So that means there is a problem with the concepts at the conceptual level. जैसे जैसे आपने अपने बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने शुरू कर दिए, you will see a difference wherein you will find interested, happy, attentive students in your class. वो खुद कहेगा कि आज मैथ्स का पीरियड है, मैं मिस नहीं करूंगा, मुझे जाना है। That's the thing. इसमें लिखा है you are built to be the hero of your life. You are built to be the hero of your life. If you ask me, I'll only tell you one thing, that you should love yourself. Because if you do not love yourself, आगे का तो गेम चलना ही नहीं है। पहले खुद को तो प्यार करना सीखो, वेरी इंपॉर्टेंट। Now we come to this thing, smile. Smile क्यों जरूरी है? स्माइल जरूरी है, सॉरी, स्माइल जरूरी है भी नहीं। इतने दम में बैठे स्माइल जरूरी है सर, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। Change the state of mind. Oh, to change the state of mind. Very good, big statement. But ये स्माइल कहाँ कहाँ जरूरी है? कहाँ कहाँ जरूरी है बताइए आप? चलो when we meet someone, ठीक है डन। What else? सर इंटरनली खुश रहना ज्यादा जरूरी है। तो इंटरनली खुश रहना ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड आंसर, आई लाइक इट। और क्या? To appreciate yourself. To appreciate yourself. Very good. What else? Positive mindset. Positive mindset. Very good. Make energy in myself. हाँ, very good. Very good. सर बच्चा स्माइल देखकर
अपनों को अप्रोच कर सकता है कि जैसे कोई भी बात Absolutely. Suddenly you break all the barriers and the child can approach you. Very good. Very good. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब क्लास में घुसेंगे तब स्माइल करते हैं, बाकी टाइम तो कब करना है, यही तो मैं पूछ रहा था तुमसे। सर जब हम इंटरेक्ट करते हैं जैसे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनको जो है हमें स्ट्रिक्ट प्लस में थोड़ा सा lenient दोनों ही बैलेंस मेंटेन करना Absolutely, तो absolutely. हम लोग जैसे कोई भी हमारा कंसेप्ट चल रहा है बीच में जो है थोड़ा सा जो है जॉब नॉट अ काइंड ऑफ जॉब जैसे इंटरेक्टिव हम बना रहे हैं जैसे आप हमसे बातें कर रहे हैं या तो पूरा चलता रहेगा तो बच्चा अप्रोच नहीं करेगा एक स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट और एक इन्वायरमेंट ऐसा होगा जिसमें बच्चे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं तो टीचर से अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसे कैसे हुआ क्वेश्चन कर रहे हैं मतलब एक टीचर का भी वो होता है सर थोड़ा सा मतलब वहाँ पे ना उनको इतना ही स्ट्रिक्टनेस दिखा के थोड़ा सा लीनियंसी वो अप्रोच कर सकते हैं For me to understand, you are saying that a smile will possibly welcome or create confidence in the mind of the students to have the strength, to have the courage, to have the guts to possibly raise hand to ask. Correct? Correct? Very good. Fearless. सर एक्चुअली क्या है ना जब अगर हम पहले से स्माइल करेंगे जैसे आपने कहा जब एंटर करते स्माइल करो पूरा दिन ऐसे रहो तो वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट स्माइल का है ही नहीं जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर हम सब कुछ एनर्जी है अगर हम बिलीव करें तो अगर हम पॉजिटिव है एनर्जी हम वैसे एनर्जी देंगे वैसे वाइब्स देंगे इवन अगर हम स्माइल भी नहीं करें तो बच्चे अट्रैक्ट होंगे बिकॉज हम पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं और स्माइल हम अंदर से दे रहे हैं तो दिस इज द मेन थिंग। वेरी गुड। So if you ask me, बहुत ही बढ़िया बोला। Smile actually communicates through your face, through your eyes. Correct? You may not be smiling, but it says a lot that you are smiling within also. But if you ask me, एक वो इंसान जो हमेशा फ्राउन करता रहता है कभी उसके चेहरे पे स्माइल नहीं दिखती, क्या आप उसके पास सजेशन के लिए जाओगे या उसके पास जाओगे सजेशन के लिए जिसके पास एक स्माइल है? स्माइल है ना, क्योंकि स्माइल क्या है? होप है ना यार। इट सिंपली गिव्स यू होप, होप ऑफ पॉजिटिविटी, होप दैट यस समवन इज देयर फॉर यू। अब कोई सड़ा हुआ बैठा हुआ है तो आप उसके पास जाओगे क्यों? And also please understand, in this negative world, I'm saying, in this negative world, a person who's smiling is known to have a very well balanced, positively wired person, and one should go to him or her. ठीक है? अब आप ये देखिए कि आपने बोला कि ठीक है हम जब स्माइल जब खड़े होंगे मतलब स्कूल आएंगे तो कर देंगे, घर वालों ने कोई दुश्मनी है आपसे? तो जिन लोगों ने अपने हाथ इतने बड़े ऊंचे ऊंचे किए थे, सोचो अगर यू आर स्टेइंग इन योर जॉइंट फैमिली और सुबह उठ के आपने कोई स्माइल वाइल नहीं करी और आप फंगस में बस किचन में घुस गए हो तो आपकी सासू माँ आपके हस्बैंड को बोलेगी बेटा कभी स्माइल भी करा दिया करो। आई एम टेलिंग यू समथिंग, पीपल आर फॉर्मिंग ओपिनियंस अबाउट यू एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इवन दिस चाइल्ड विल बी फॉर्मिंग एन ओपिनियन about the near and dear ones. The child will be scared to go to somebody who is always angry or frowning. Yes or no? So that means पूरी जिंदगी हम लगा देते हैं अपना इंप्रेशन बनाने के लिए, पॉजिटिव इंप्रेशन बनाने के लिए। And look, we do not understand the significance of this beautiful weapon that you have. Smile करके आप किसी से कोई भी काम करवा सकते हैं।
मेरी बाइक ने तो टायर पंचर तक ठीक करवा दिए, सड़क पे खड़े हो गए। Oh my son, you know, with all this sorry, how can I do it? Please, it's going to take you 2 minutes only. I'll support you. अरे वो कहाँ सपोर्ट करेगी? और डिक्की भी वही खोलेगा बेचारा, टायर भी उसी ने निकाला, जैक भी उसी ने लगाया। But that smile did the wonders. अगर यही वो होगी, तो ऐसा कर दो ना, क्या हो गया? हद कर दिया आपने? 5 मिनट लगेंगे आपको। भाई साहब के अंदर जो गुबार होगा सब यही निकल जाएगा। Actually, that is no smile, that is the art. That is the art, but madam smile is बहुत काम करती है। आप बैंक खुलवा सकते हो। There is lot of types of smile. Please open the door. आपको पता है ट्रैफिक कितना था आज? और मेरा तो लॉकर का काम है 2 मिनट में हो जाएगा। उसको भी पता है बीबी जब अंदर जाएगी लॉकर का काम किसी का 2 मिनट में हो जाएगा। But still, I tell you, the smile actually is a weapon. If used properly, you have won the life, won everything in life. Because even your, by the way, आप घर से चले, चलो घर वालों को सेट कर दिया, वो स्माइल देके, सुपर वूमन देके आया। अब आप अपने घर से स्कूल तक आ रहे हो, बस स्टॉप तक जा रहे हो, you know there are people observing you. कौन कौन मॉर्निंग वॉक पे जाता है बताओ मुझे। ओह, लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। जिम जाओ but people have nothing else to do but to observe and make opinions about you. So if you ask me, मैं भी वॉक पे जाता हूँ और पॉसिबली कॉलोनी के जितने लोग हैं वो मुझे जानते हैं क्योंकि मैंने उनको यूँ स्माइल करी, गुड मॉर्निंग, उन्होंने 2 बार ही नहीं करी, तीसरी बारी शर्मिंदगी में कर दी, चौथी बारी बोला कम एंड सिट विद अस, लेट अस वेट यू स्टे, ठीक है, और जान भी जान। So smile is something that you should have, and Dale Carnegie, the famous American author, said one thing, that people who smile tend to teach, manage and sell better. People who smile tend to teach, manage and sell better. Teaching में तो आपको ही पूरा दिन मैनेज करना पड़ता है, पहले यहाँ पे घर पे इन बच्चों को, घर पे अपने बच्चों को और पूरी फैमिली को। What you are selling are your experiences of life, rich experiences of your life. उतने rich तो किसी के पास नहीं होते, because from your experience today you are able to tell a child, ऐसे करें, you'll do better. So please understand, smile is very important. ये खतरनाक स्टेटमेंट है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। Your sleep is very important to you and to them. Don't let them win. अब ये them कौन है, कौन बताएगा? Them कौन है? Overthinking. Overthinking would be. Sorry, answer ठीक है? Anxiety and stress. Anxiety and stress, oh God. मतलब कितना क्या टॉर्चर करते हो एंग्री यंग मैन, इसीलिए वो जिम जा रहे हैं भाई, जिम शुरू करो, सारा गुस्सा वही निकालो। हाँ जी, who is them? The neighbors. Society thinking, sir. आंसर बताऊंगा ना तो आप कहोगे सीरियसली। अच्छा एक चीज बताओ, इज स्लीप इंपॉर्टेंट और नॉट? Yes. There you go. Very good. So don't let them win का क्या मतलब है? Which world do we live in? It's a digital world. 110 distractions. ठीक है? एक फोन में पता नहीं कितने सारे ऐप्स हैं. There's lots and lots of content. So that means everyone, for example, the Facebook, the Insta of the world,
ठीक है, WhatsApp of the world, Amazons of the world, Netflix of the world, small channels of the world are wanting that you should spend time on them. Correct? So they want that a larger time when you are free or you take out time to become free should be given to them. But if you ask me, the more you are on the digital gadgets, एक्चुअली क्या है कि अगर आप देखो आप किन को देख रहे हो, people who have made it big in life, yes or no? You are all successful ना, तभी तो आप उनको देख रहे हो। जो मूवीज आती हैं हम भाग भाग के जाते हैं, क्यों जाते हैं? फिर वो पिक्चर आती है हम दोबारा टीवी पे देख लेते हैं या किसी चैनल पे देख लेते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर फेमस। और हम भी तो चाहते हैं कि हम भी अपने आप को एंटरटेन करें, सारा दिन मगन यहाँ पे दिमाग लगाया, घर पे दिमाग लगाया, अब भाई कुछ तो टाइम मुझे अपना भी मिलना चाहिए। बट वो बहुत स्मार्ट है, उन्होंने अपना दिमाग सही टाइम पे लगा दिया, they have become successful and we all have become hooked to something। अब ऐसा नहीं है कि मेरे घर में इंटरनेट नहीं है या मैं मूवी देखता हूँ, I also watch, but there is one thing that all four of us have done, that we love our sleep। We would possibly sleep by 11, हर लोग तो 11, 10 बजे से हम लाइट्स डिम करनी शुरू कर देते हैं, इधर की लाइट ऑफ करके उधर की लाइट ऑफ कर दी, क्योंकि माइंड को कुछ सिग्नल चाहिए ना कि भाई अब रिलैक्स कर, क्योंकि माइंड तो पूरा दिन जब एक्टिव रहा है उसको अपने फोल्डर भी तो बंद करने हैं, धीरे धीरे करके बंद हो गए। यू आर नॉट गोइंग टू फॉल asleep immediately। सो 10 से 11 बजे का क्या टाइम है कि हम अपने फोन्स को उल्टा कर देते हैं। Until unless there is something very important coming your way, that's a separate thing, but हम अपने फोन्स को उल्टा करते हैं, तो we sit in the lobby, either we are reading something or we are discussing something। अब रीडिंग का फायदा ये होता है कि यू आर एबल टू शेयर, यार इसमें मैंने ये चीज अच्छी पढ़ी, it could be implemented। Wow, that's called self development। So for example, you are all teachers over here, आपने कोई चीज पढ़ी, आपने कोई चीज देखी और आपने बोला कि tomorrow maybe I'll implement this thing, क्योंकि बच्चे सेम चीज देख देख के बोर हो जाते हैं। Until unless उनको लगे कि आपके अंदर भी एक जादुई पिटारा है कि आज आपने एक कबूतर निकाल दिया, कल आपने तोता निकाल दिया, कल आपने एक आलिशान महल बंगला उनको दिखा दिया, आई डोंट नो। So it takes a lot for the teacher, बहुत efforts लगते हैं to make the students connect। So please understand, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई ना, you will not be yourself। I had to come over here, so yesterday I came from my office at 9, I skipped my dinner because I knew मैं डिनर करूँगा, I'll feel heavy। मैं फैमिली के साथ थोड़ी देर बैठा, 10:30 बजे मैं सोने चला गया। I got up at 4:45, 4:46 I was